بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اور خدا نے تم پر اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ خدا کی آیات سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور سب کو دوٹھا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں۔ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ان جیسے ہو جاؤ گے، نیچے ہے کہ تم اس ٹائم پہ ان جیسے ہو۔ اب صحیح والا کون سا ہے؟ بے شک تم سب، یار یہ اذن مجھے نہیں آتا کرنا، بے شک تم سب ان کے جیسے ہو جاؤ گے ہی فٹ بیٹھ رہا ہے نا، یہ نہیں کرو ورنہ ایسے ہو جاؤ گے۔ ان جیسے ہو تو نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہم، جو آیت پیچھے سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے یہ کہہ رہی ہوں۔ بھائی اگر واقعی اگر قرآن سے ایکسپلین کرنا چاہیں، مطلب جیسے وہ صحبت کے لیے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس پہ آ جانا کہ تم اپنے دوست کے دین پہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ حدیث بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، اس کی جگہ یہ آیت کر دی جائے۔ صحیح بات ہے، صحیح صحیح بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ان باتوں سے روکو، وہ ہے کہ اٹھ جاؤ وہاں سے۔ ہم، یہ مجھے سرپرائز کرتا ہے تھوڑا، لیکن میرے خیال سے اگلی آیت میں اس کی وضاحت تھی، کیا تھا، کچھ ایسا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز اوکے تو یہی چلیں۔ آتی ہے نا ذہن میں، چلو دیکھتے جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں۔ تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خادعون کوشش کرتے ہیں نا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں۔ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر لوگوں کو دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ریاکاری پہ بھی ساری مجھے یاد آ رہی ہیں بھائی۔
क्या याद आ रही है? रियाकारी पे जो हदीस है। अच्छा सुनो, मैं 2 मिनट में दरवाजा खोल के आ रही हूँ, बेल बजी है, सही है? हाँ, क्या कह रही थी? रियाकारी पे हदीस से याद आ रही है। अल्लाह हम्म। करो। सही है। देखो, नमाज किधर है? नमाज, ठीक है, नमाज में अल्लाह ताला का जिक्र, यहाँ से हमें कुछ नमाज की हिंट मिल सकती है। सही है, सोचा जा सकता है। नमाज में अल्लाह ताला की याद, यद कुरूना। ठीक है, आगे चले। जी। बीच में पड़े लटक रहे हैं, ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ, और जिसको खुदा भटकाए तो उसके लिए कभी भी रास्ता ना पाओगे। वो दरमियान में ही मुअल्लक डगमगा रहे हैं, ना पूरे उनकी तरफ ना सही तौर पर उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो उसके लिए कोई राह ना पाएगा। कौन लटक रहे हैं? जो नमाज ऐसे पढ़े हैं रियाकारी के साथ लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, यही वाले, जो वो क्या अल्लाह ताला को धोखा हाँ। देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही। मेरे ख्याल से मुनाफिकीन की बात हो रही है ना, उन्हीं की बात कर रहे होंगे ना, जो बीच में लटक रहे हैं। ये रहा अंदर मुनाफिक, सही बात है। हम्म। ठीक है। अच्छा, जो मेन बात वो खोलिएगा। वो क्या वाली करूं? वो वाली आयत जो भी पढ़ी है। हम्म हाँ, अच्छा, अब देखिए इसके लास्ट पे है, वमन युद्लिलिल्लाहु, और जिससे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो वो कोई राह नहीं पाएगा। लाइक ये आयत बता रही है कि ये लोग भी गुमराह हैं। तो मैं क्यों लग रहा था कि गुमराह नहीं है? क्या, बस फिर से बोलो, क्या कहना चाह रही हो? नहीं नहीं, देखें, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल वो जो दौलीन को यहूद समझे जाता है, तो इससे पहले हमने एक आयत पढ़ी थी ना, उसमें आ रहा था जो अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके मलाइका पर ईमान नहीं लाए, वो दूर की गुमराही में पड़ गया। मतलब एक तो हम्म जैसे वो, मैंने नहीं कभी सुना, हर स्कॉलर कहता है, जिसको भी सुन लो, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, दे आर काफिर, एंड बस। मतलब कोई भी उनको दौलीन में शामिल ही नहीं करता, और मुनाफिकीन को भी कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुनाफिकीन भी दौलीन में हैं, नहीं बोलेगा। हाँ, तो मुनाफिकीन वो तो मैं दालीन में नहीं होते, हाँ यही बात तो सुनी है, ठीक है। नॉन हम्म, मुस्लिम किसको कह रही हो तो तुम? अच्छा, वो ईमान नहीं ला रहे, जो मलाइका पर, पर जो भी तुमने अभी सब हाँ बताया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यार कुछ कैटेगरीज ओवरलैप भी तो करती होंगी ना। द्वालीन भी है, नॉन मुस्लिम भी है, ऐसे भी तो कुछ होता होगा ना। हाँ, लेकिन वो सिर्फ, लेकिन भाई उनको कभी दौलीन में मैंने नहीं सुना, मतलब वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो काफिर नहीं होंगे, होंगे हम्म जैसे कि हम्म मुनाफिक भी तो है ना, लेकिन हम्म। वो दौलीन में तो है ना, मतलब दौलीन की एक एग्जाम्पल वो भी तो हो सकते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, समझ में नहीं आता। वो एक जो किस तफसीर कर दी गई ना, उसको ही सब लगता है रिपीट करते रहते हैं। हाँ। चलो। हो गया इस आयत में। अपन जी तजदल जी। सबीला। यार मतलब, अच्छा, मुजा यहाँ पे आ रहे हैं। सबील बैन ज़ालिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वला। मैंने कभी इधर नहीं कभी इधर किया। अल्लाह, कितनी क्लियर पिक्चर आ रही है कि बाकी कुछ लोग कितने बावले बने इधर उधर हो रहे होते हैं। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक ये होता है ना कि वो सिरात मुस्तकीम नहीं पाएंगे, यहाँ पे सबील आ रहा है भाई, रास्ता ही नहीं मिलेगा।
कोई सबील सभी, ही नहीं मिलेगा। कोई सभी रास्ता, सही 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 सही। अरे अल्लाह। ए अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का सरीह इल्जाम लो? ऐ ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? अच्छा, इसको हमें वो करना चाहिए, मतलब इस टॉपिक को मुझे लगता है हमें सर्च करना चाहिए। जैसे ये वाली चीज़ तो है हमारे आसपास, क्रिश्चियंस हैं, अब पता नहीं वो काफिर हैं या नहीं। क्रिश्चियंस काफिर होते होंगे, पता नहीं। अच्छा, या मतलब और भी तो लोग होते हैं ना, तो कभी हम उनसे बात वगैरह तो करते हैं, उनसे ताल्लुक भी एक होता ही है, तो वो उसकी लिमिट क्या है? या इस जैसे पे कोई होना नॉन चाहिए ना। मुस्लिम है। यार पहली बात तो ये कि देखो, जो काफिर होता है ना, वो तो वो है जो जानबूझ के सच को झुठला रहा है। ठीक है, हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं है ना। हम्म। अभी हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कौन जानबूझ के? और अगर कोई है भी तो हम वही बोला जाता है ना भाई, काफिर ऐसे कह मत दिया करो किसी को। हमें क्या पता उस बेचारे को वाकई सही मैसेज ना मिला हो। तो मैं तो अब ये पहली दफा, जबकि मैं बहुत दफे बात सोच चुकी हूँ, लेकिन ये पहली दफा मेरे जहन में आ रही है बात कि हमें पता कैसे चले कि लिटरली काफिर कौन है जिसका औलिया नहीं बनाना है। यानी अल्लाह ताला वाजे कर देते हैं कि इसको पता है, जानबूझ के ये लेकिन झुठला ऐसा रहा है। कोई बंदा है जो मैसेज सुनना ही नहीं चाह रहा, तो उसको हम इसमें रखेंगे? अच्छा, तो सुनना ही नहीं चाह रहा, मतलब जैसे ओके। मुझे याद है 3 साल पहले मैं किसी से मिली थी, और मैंने एंड वो क्रिश्चियन थी, ठीक है, और मैंने उनके सामने वाकई कुरान की आयतें रखी थी। हम्म तो बट हाँ, और क्योंकि वो खुद भी, मतलब जाहिर सी बात है, वो पता नहीं कितना, मतलब एमए किया हुआ था, पता नहीं कितना, तो मैंने कहा अपनी इस्लामिक बुक से पढ़ेंगे, कहती मैंने उसको जस्ट एज अ बुक पढ़ा है, एक रैंडम बुक जिसमें गलत बातें भी होती हैं। तो हम्म। मैंने कहा, लेकिन मैंने उसके सामने वाकई कुरान की आयतें रखी थी, बट वो सुनना नहीं चाह रही थी, मतलब वो जवाब भी नहीं दे रही थी। ठीक है कि एक हाँ नहीं ऐसे है वैसे है जो भी, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाह रही थी, वो कह रही यार थी देखो, चुप करो, गेट आउट। ठीक है ठीक है ठीक हाँ। है, देखो मेरी बात सुनो। अगर किसी के ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, कि एक मुसलमान ने बम फोड़ा है जाकर, ठीक है, और मुसलमान यही सब करते जो हमारी पिक्चर है दुनिया में, ठीक है, इनके तो हम्म। प्रॉफिट थे और उन्होंने तो ऐसे जो भी गलत कॉन्सेप्ट लेकर चले कि भाई 6 साल की बच्ची से शादी की थी। जो देखो, हम लोग तो इन डेप्थ जाते हैं ना, वो तो ऊपर ऊपर से सुन के यकीन कर लेते हैं कि ये उस प्रॉफिट को मानते हैं जिन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, जिन्होंने 8 9 बीवियां रखी, मतलब वो उनको लगता है ये क्या है, हम क्यों सुने इनकी किताब की। तो उनके ऊपर नहीं क्लियर हो रहा, अगर वो सुनना नहीं चाह रही तो उसके पास कोई सॉलिड रीजंस हैं, तो इट्स ओके मेरे ख्याल से। उस वक्त हम तब भी आई गेस उसको काफिर में नहीं रख सकते यार। हम अपने आप को रख के देखें ना इनकी जगह पे, नॉन मुस्लिम की जगह, तो हमें भी शायद ना चिड़ी हो जाए कि अबे ये मुसलमान ने नहीं बनना भाई। समझ रही हो? ये सोचना पड़ेगा यार इस चीज को। बहुत बड़ी आवाम है जो सही। काफिर नहीं है मुझे लगता है। मतलब ये है द्वालीन और गुमराह, नहीं पता, उस तरह के उसमें आ जाएंगे, लेकिन काफिर पता नहीं, नहीं इसमें यार। देखो ना, इसमें उस तरह का दोस्त नहीं है ना, यानी पक्का दोस्त का वो है जिसमें आप, जिनसे आप सारी उस तरह से डिटेल बातें भी करते हो और हर टॉपिक पे उस तरह से बात भी हम्म करते हो। हम्म लेकिन इसमें कहीं भी हुस्न सलूक का मना नहीं किया हुआ, यानी कि अगर नॉर्मल आपका कोई पड़ोसी है या आपके हम्म आसपास लोग रहते हैं तो उनसे एक अच्छा सलूक करना, एक अच्छे माहौल में मिलना, या हम्म उनको इनवाइट करना अपने घर पे, या कोई इस तरह की कोई बात पे कहीं पे मना नहीं किया हुआ। लेकिन उस तरह की दोस्ती नहीं कि जिसमें आप उनको अपने बहुत सारे उस तरह के राज बताओ, क्योंकि उस जमाने में तो ये जो जिस वक्त ये आयतें नाजिल हुई होंगी तो उसमें तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे ना जो मक्का से आए थे। अब उनके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे जो मदीना आ गए थे, तो वो उनके मक्का में फ्रेंड्स रह गए थे, हम्म बचपन की दोस्तियां थी, रिश्तेदारियां थी। तो आप हम्म उनसे हर तरीके की दिल की बात और उस तरह के मसले डिस्कस करते थे। लोग पहले करते होंगे, जैसे आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब हाँ। इस्लाम लाने से पहले तो वो फ्रेंडशिप चल रही होगी उनकी उनसे। तो हम्म वो उस पे मना किया है कि उसको ऐसा नहीं हो कि फिर आप उनको अपने राज बता दो कि हम हाँ ये प्लान कर रहे हैं कि यूं करके यूं कर लेंगे और ये कर लेंगे, तो वो उसको इन अ रॉन्ग सेंस ले लें, या वो आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर और फिर उसको कहीं और यूज करें। सही से सही सही सही, ठीक हो उस गया बारे ठीक। में आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। सही हो गया। और भाई, मुझे वैसे ही, मैं सुल्तान मुबीन पे भी अटकी हुई हूँ कि सुल्तान मुबीन ये क्या मतलब, कि तुरीदु ये जो, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम चलो, लेटर ऑन। यानी हुज्जत मेरे ख्याल से ये है कि अल्लाह ताला ने जो थोड़ा बहुत अलाउ किया हुआ है कि आप थोड़ा हम्म बहुत उनसे मिल लो या बातचीत कर लो, बिल्कुल ही कहीं अल्लाह ताला उस पे वो ना लगा दें कि
यू आर नॉट इवन अलाउड टू टॉक टू देम। हुज्जत ना कायम कर दें वो उस पर। कैसे अल्लाह ताला करेंगे, कुरान तो हो गया नाजिल फिर। नहीं तो अल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला डजंट वांट यू टू हैव अ क्लियर रिस्ट्रिक्शन, यानी बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला ने अगर उसको मना कर दिया कि आप कर ही नहीं सकते दोस्ती, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो फिर वो वाली बात आ जाएगी ना, यानी कि हुज्जत का मतलब है कि बिल्कुल हराम हलाल पे आ जाएगी बात। वैसे हुज्जत ये कर रहे हैं ट्रांसलेशन उर्दू में, मुझे अरबी में लग नहीं रहा कि हुज्जत वाली कोई बात आ रही है इधर, लेकिन चलो ठीक है, देख लेंगे फिर। सुल्तान का मीनिंग है जबरदस्त कुव्वत, इख्तियार या गलबा, कतई दलील या यानी बिल्कुल ही समझ। स्ट्रिक्ट एक्शन आ जाएगा इसके ऊपर, वरना कैसे आएगा फायजा? एक्शन की तो समझ ही नहीं आ रही। फायजा खत्म हो गया, यानी कुरान तो जैसे नाजिल हराम हो गया, हलाल अब कैसे आएगा? जैसे कि जैसे हराम हलाल का रिस्ट्रिक्शन आता है ना, वो स्ट्रिक्ट एक्शन है ना, कि अब आप ये कर ही नहीं सकते हैं। कि अच्छा। मतलब अगर ये बोल दें कि आप नॉन मुस्लिम से दोस्ती करना हराम है, फायजा मैं कहना ये चाह रही हूँ, कुरान तो नाजिल हो गया ना, फिर कैसे आएगा ये ऑर्डर ये जब तो कुरान। कुरान में मतलब वो उस जहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको हराम नहीं कहा है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी वो निकलती है ना कि आप उनसे हल्का फुल्का दोस्ती रखें, फ्रेंडशिप रखें, मिलना जुलना रखें, वहां पे अलाउ किया हुआ है ना उस तरह से। सही। अच्छा लेकिन यार। राजदारी और वो वाली बातें ना करें, सही मतलब सही, ठीक इस हो तरह गया। की। हम्म। अच्छा यार, वो आज ना जल्दी एंड कर देते, मैं भूल गई थी, ठीक है। तो क्या सेशन है 10 बजे, फिर कल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। फायदा वैसे तुम सवा 8 वाले में भी कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, 8:15 वाले में भी हाँ कंफर्टेबल चलो, है। सही है, फिर बात बल्कि वो करते ज्यादा हैं। सूट करता है मुझे टाइम, लेकिन ये भी सही है। ओके 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 बाद में ओके। थोड़ा लेट हो गई, मेरे घर पे कोई आया हुआ था तो मैं थोड़ा लेट हो गई, पता नहीं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, ओके, कल मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।